محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما السلام علیکم. سلام پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور ماشاءاللہ سے آج 5واں روزہ ہے اور جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں شام 5 بجے. سلام پاکستان رمضان کی اسپیشل ہم نے آپ کے لیے اس ٹائم پہ ہم نے رکھا ہے یہ شو. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ صبح کے ٹائم ہم ریپیٹ کراتے ہیں شو کو اور شام میں 5 بجے سے ہم آپ کے ساتھ لائیو موجود ہوتے ہیں. اور آج کے دن بھی ہم کوئی اچھا سا ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور ایسا ٹاپک جس سے آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں گے, ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں گے. یہ نہیں کہ صرف آپ لوگ سننے والے ہیں تو اپنے بہتری کی طرف آئیں گے. جہاں پر میں سوال کر رہی ہوتی تو کوشش میری بھی یہی ہوتی ہے کہ جو چیز میں سنوں اس کو بھی میں بھی عملاً اپنی زندگی میں لے کر آؤں. بڑا آسان ہو جاتی ہے زندگی. ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کئی چیزیں اپنی زندگی میں جو ہم بھولے ہوئے تھے وہ واپس سے ریکالنگ ہو رہی ہے اور ہمیں اس پاتھ کی طرف, اس راہ کی طرف لے کر جا رہی ہے جس میں صرف اور صرف پھول ہی پھول ہیں, کانٹے سارے سائڈ پر ہٹ جاتے ہیں. تو آپ جب بھی ہم ٹاپک لے کر آئے بڑا اچھا اور بہترین ٹاپک ہے. پہلے آپ کی ملاقات کرائیں گے ہمارے مہمان سے. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کے مشہور فنکار, لیکن ماشاءاللہ سے ان کو دین کے بارے میں کافی نالج ہے تو ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم اسد, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. جب آپ کہتے ہیں دین کے بارے میں بڑی نالج ہے, مجھے عجیب سا ہوتا ہے, فیل کرتا ہے نہیں. الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے یہ نالج اللہ نے مجھے دی ہے اور اپنی کتاب سے دی ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں صرف اس کی کتاب کنسلٹ کرتا ہوں. اب جو دوسری کتابیں تھیں وہ میری سب بند ہو گئی, میری ضرورت نہیں مجھے. کیونکہ جب ایک کتاب سے جب آپ سب کچھ جان سکتے ہیں اور اوتھینٹک ہو, جس میں کوئی شک نہیں ہو, تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہیں اور جانے کی. تو میرے خیال میں بہترین ذریعہ یہی ہے. اور ضابطۂ حیات انسان کی زندگی پوری کی پوری جس طرح گزارش ہے. میں نے کہا نا کہ ہم لوگ جو پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں, کئی جگہ پہ گھبرا رہے ہوتے ہیں, کئی جگہ پہ کوئی کام کرتے ہوئے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, بے چینی, زندگی میں سکون نہیں, یہ سارا اسی وجہ سے آتا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں باتیں بتائی ہیں کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے وہ ہم فالو. ابھی آپ نے کہا کہ ہم پریشان ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, خوف میں ہوتے ہیں, تو پریشانی آدمی کو پروویژنس کی ہوتی ہے, بھوک کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے 154 یعنی بقرہ کی 154 آیت میں کہا, بولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع, اور یقیناً تم لوگوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا, ٹرائل کیا جائے گا تم لوگوں کو بھوک اور خوف کی کنڈیشن میں ڈال کے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور تمہارے مالوں میں نقصان کر کے, تمہارے نفسوں میں جو شیطان گھسا ہے, نفسوں میں آپ کو پیچھے وہ کہ کرے جا رہا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. آپ کو اچھا وہ چیز اچھی لگ رہی ہے, چلو اس پہ اس طرف چلتے ہیں, اس طرح. تو وہ نفسوں میں ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کا کہ کیسے آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کا بھی طریقہ اللہ نے بتا دیا, بڑا آسان ہے. کیونکہ دیکھیں شیطان کو آپ مار نہیں سکتے, ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کو اللہ نے اجازت دی ہے. اب جب اس کو اللہ نے اجازت دے دی ہے تو یہ سوال ختم ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو, کیونکہ اللہ اسے کہہ رہا ہے 17 نمبر سورہ ہے بنی اسرائیل اور اس کی 64 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِالصَّوْتِكَ, کہ جان کو بھٹکا لے جتنی تیری استطاعت ہے اپنی آواز کے ساتھ. تو اس کی آواز آپ کی نفسیات میں پیچھے ہلکی ہلکی آ رہی ہوتی ہے. اور یہ بات کہاں کہی گئی ہے؟ 169 نمبر آیت. ہاں ہم آیتوں کو آیتوں سے ریلیٹ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. صحیح, ٹھیک ہے. یعنی آپ کو اپنی آواز سے کیسے بھٹکاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہا ہے 169 نمبر آیت ہے, 70 نمبر آیت ہے, انما سورہ بقرہ کی, انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کی اور فحاشی کی. ٹھیک ہے جی, وہ کہاں حکم دے رہے ہیں؟ یہاں پہ آواز سے. اس کی آواز آپ کی آواز بن جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. پھر وہ کہتا ہے وجلب علیہم بخیلک, اور اپنے خیالوں سے ان کو اوپر پردہ ڈال دے, کور کر دے ان کو. تو اسی طرح سے وہ بھٹکاتا ہے. یہ بات ایسے ظاہر ہو جاتی ہے نا کہ جو انسان غلطی کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا برائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے شیطان, خیالوں میں پردہ ڈال, اور اس کو وہ جو پھر وہی چیز وہ کرنے لگتا ہے, وہ چیز اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے, وہ اس کے اندر اٹریکشن آ جاتی ہے نا اس کے لیے. تو یہ اب ٹیسٹ ہو رہا ہے. ہم واپس آتے ہیں 2 کی 154 پہ. نقص من الاموال والانفس والثمرات, ثمر کہتے ہیں ریزلٹس کو, پھلوں میں نہیں, ریزلٹ کو. جو آپ نے کام کیے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے رزلٹ ٹھیک نہیں ملتا ہو یار, بندہ مایوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز یہاں پہ کہ ایک جو ہے مایوسی کی جہاں پر بات آتی ہے کہ مال کا خوف اور اس کو نقصان بھی ہوتا ہے,
کئی جگہ پر یہ بھی سنا جاتا ہے یا میرے خیال میں I don't know it's true or not کہ جب انسان ایمانداری سے محنت سے اور سچی لگن سے کماتا ہے تو اس کے مال میں برکت بڑھ جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور جو انسان جو ہے وہ غلط طریقے سے رانگ وے سے کماتا ہے اس کے مال میں برکت نہیں رہتی ہے. کیا یہ وہی خوف ہوتا ہے کیا جو اس میں خوف بتایا گیا؟ نہیں اس کا یہ تو بالکل دو ڈفرینٹ آل ٹوگیدر بہت دور دور کی چیزیں ہیں. اچھا دیکھیں ایک آدمی اگر اپنے سارے معاملات کو ٹھیک طرح سے لے کے چل رہا ہے اللہ کے احکام کے عین مطابق, اچھا تو اس کے لیے سورہ 47 نمبر سورہ محمد میں ہم چلے جائیں گے. سیکنڈ نمبر آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی اور محمد پر جو نازل ہوا قرآن اس پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, جو کہ ہے ریئلٹی ان کے رب کی طرف سے, حق ہے. حق از ریئلٹی, ایک طرح سے سچ بھی کہا جا سکتا ہے, ریئلٹی ہی سچ ہوتی ہے, بٹ دا ایکچوئل ورڈ جو زیادہ کلیئر کرتا ہے چیزوں کو وہ ریئلٹی ہے. اچھا حقیقت ان کے رب کی طرف سے ریئلٹی ہے. تو کیا ہوگا, کفر عنہم سیئاتہم, ان سے ان کی برائیاں ہٹا دی جائیں گی, وہ اصلح بالہم, اور ان کے حالات درست ہو جائیں گے. اچھا ایسے لوگ یہ ایماندار والے ان کے لیے جو ایمان لا رہے ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر رہے ہیں ہر طرح سے, صحیح ہے, تو ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے, بہتر ہو. اچھا فزیکلی بھی, سوشلی بھی اور psychologically. وہی جو سکون والی بات ہے یہاں سے آ جائے گی. خالد صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے ان کی کال آئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خالد صاحب, آج آپ کچھ کہنا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے؟ رمضان کے حوالے سے سب سے پہلے آپ مفتی نے ایک شو کو چینج کیا اور اسد بھائی کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ ہم لوگ ایکٹریس کو ہمیشہ جو ہے دوسرے روپ میں دیکھتے ایکٹنگ کرتے ہیں, ماشاءاللہ بہت دیندار انسان ہے وہ, الحمدللہ. جی جی جی, اور کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ سوال ہے آپ کا؟ بس یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے میں کہوں گا کہ جس طرح ہم لوگ عام دنوں میں تو ہم لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے, بٹ اس مہینے میں خاص طور پہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. اور قرآن کے موضوع پہ ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں چل رہی ہیں آپ کی, اور آپ کا میں شو روزانہ ہی دیکھتا ہوں. اچھا جی, بہت بہت شکریہ خالد صاحب, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آج آپ نے کال بھی کر لی, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور واقعی یہ بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان کو عادت پڑ جانی چاہیے کہ آپ دیتے رہیں لوگوں کو, ایسا نہ. چلے صحیح, ہم ابھی بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد آپ کی کالز بھی لیتے رہیں گے, اور ساتھ ساتھ ہم دعا پر آج تھوڑی بات کریں گے کہ کہیں پر یہ دیکھتے ہیں کہ دعائیں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کہیں پر اتنا عرصہ ہو جاتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں. چلے ہم دعا پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين ہر لمحہ بن جائے من پسند, من پسند. ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے. ماجن بھی ایسے ہی بناتی تھی پراٹھے حبیب بناسپتی میں. ایسے کھاتی تھی چڑیا. وہ اب بھی یہی ہیں ہمارے ساتھ. حبیب VTF بناسپتی, کھانوں میں وہ لذت لائے کہ ہر لمحہ قیمتی ہو جائے. حبیب VTF بناسپتی, سواد جو ہمیشہ رہے یاد. بن جائے من پسند, بوٹوں کی ڈھلکی
فضا وقت کی یہی صدا ہے اسی میں فلاح ہے اسی میں فلاح ہائے قدرت کو یہ ادا وقت کی یہی صدا ہے اسی میں فلاح ہے اسی میں فلاح. اس رمضان کیجیے میزان کوکنگ آئل اور بناسپتی کی بھرپور خریداری، کیونکہ میزان لایا ہے میزان رمضان ہم سفر پروگرام، جس میں میزان کرائے گا پورے رمضان بے شمار روزے داروں کو روزانہ افطار. حقوق العباد ہے اولی کہتا یہی ہے اپنا دین وقت کی یہی صدا ہے اسی میں فلاح ہے اسی تو آئیے میزان کے ساتھ رحمتوں کے اس سفر میں ہم سفر بنیے. میزان رمضان ہم سفر. گولڈن سن بڑھائے سحر و افطار کا مزہ. سحری کے پراٹھے ہوں یا افطار کے چٹپٹے پکوڑے، گولڈن سن سے بنے ہر کھانا مزیدار. رمضان منائیں گولڈن سن کے ساتھ. گولڈن سن، سنہرے دن کا آغاز. ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے. ہر لمحہ بن جائے من پسند من پسند. سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين يا صل وسلم خوش آمدید سلام پاکستان میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان رمضان اسپیشل، اور ہم آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں شام 5 بجے سے. اور اسد ملک ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم پروگرام کے ٹاپک کی طرف آئیں گے، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے دعا. اور جس طرح پہلے بریک سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کہ جہاں پر دعا قبول نہیں ہوتی ہے ہم ذرا سے اس پہ بھی گفتگو کریں گے کیوں نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اسی ٹاپک کے حوالے سے. تو اسد، پہلے تو دعا ایک عبادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی ہے، اور کہتے ہیں نا پریشانیوں کا سب سے بڑا جو اہم جو حل ہے وہ دعا ہے. لیکن لوگ کئی جگہ پر مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی دعائیں کی، ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے، ہم نے تو یہ کیا، دعا قبول نہیں ہے. اور کہیں پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی دعائیں آرام سے قبول ہو جاتی ہیں، جو وہ مانگتے ہیں وہ قبول ہوتا ہے. کیا اس میں انسان کی اپنی پرسنالٹی کا عمل دخل ہوتا ہے؟ کیا انسان کی اپنی پرسنالٹی نہیں، اس میں پرسنالٹی کا عمل دخل نہیں ہوتا، اس میں انسان کی سنسیریٹی کا عمل دخل ہوتا ہے. دیکھیں، جو اخلاص رکھے گا اللہ کے ساتھ، خشوع رکھے گا اللہ کے ساتھ، لگاؤ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً، اور پھر اللہ تعالیٰ 15 نمبر سورہ حجر 50 نمبر سورہ قاف اور اس کی 16 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور یقیناً ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، کریٹ کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے نفس میں کیا وسوسے رکھتا ہے، کیا خیالات رکھتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شہرک سے بھی نزدیک ہیں. تو جب وہ شہرک سے نزدیک ہے تو دیٹ مینس کہ جو بھی آپ بول رہے ہیں وہ سن رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 4-5 جگہ قرآن میں پڑھیں گے یہ بات، ایگزیکٹلی یہی الفاظ. بے شک وہ سینوں کے حال جانتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، سینوں کے حال بھی وہ جان رہا ہے. تو اب جو بھی آواز نکلے گی یا خیال آئے گا وہ سن رہا ہے. اس کو چینلائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40 نمبر سورہ غافر 60 نمبر آیت میں کہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا تیرے رب نے کہ مجھے آواز دو، مجھے پکارو، میں جواب دیتا ہوں. اب اس کا جواب 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک ہاں میں اور ایک نہ میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر جو ایسا نہیں کرے گا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا اس بات سے، پہلے کیا کہہ رہے ہیں مجھے پکارو، تو جو نہیں اس کو پکارے گا کسی اور کے پاس چلا جائے گا وہ تکبر میں گنا جائے گا، تو اس کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اللہ فرما رہا ہے سیدخلون جہنم، یقیناً جلدی داخل کروں گا جہنم کے اندر داخرین، وہ جو ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو ذلیل ہو رہے ہیں؟ جو اللہ سے ڈائریکٹ اسٹریٹ دعا نہیں مانگ رہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اوکے، اچھا سے کالر بھی ہے، ہم بات کو کنٹینیو کریں گے. ہیلو جی، السلام علیکم.
हेलो सलाम अलैकुम जी, क्या हाल है मिसेस उस्मान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? रमजान मुबारक हो। आपको भी जी बहुत बहुत मुबारक हो। और आपके रोजे कैसे चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे चल रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ने तौफीक दिया। मेरी रूह ने भी 2 रोजे रखे हैं, वो उसकी 7 साल उम्र है। अच्छा जी, बहुत बहुत मुबारक हो जी। एक दूसरा और एक कल जुमे का रखा है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। तो बड़ी अच्छी आपने खबर सुनाई है और उसको भी बहुत बहुत प्यार। और आज हम दुआ के लिए बात कर रहे हैं, आप सुन रही हैं हमारा टॉपिक? तो यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे, मेरी पास एक ही इकलौती बेटी है, कि अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे एक नेक महीने में। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं कि बेटी अच्छी नहीं, प्यारी नहीं है क्या? बेटी तो एक है ना, तो लेकिन वो ही आप कहती है कि मेरे बहन स्कूल जाती है, मेरे बहन भाई क्यों नहीं है। अच्छा, तो अगर फिर बेटी हो गई तो वो कहती बहनों भाइयों कुछ। अच्छा, कुछ भी हो ना, पर बस फिर सही है। पहले बेटा था ना, तो वो तो गंदे नाले में गिरते फौत हो गया। तो जी जी, आपने बताया था। हाँ जी, नहीं देखिए, अल्लाह ने आपको नवाजा भी था, लेकिन ये है कि ये जो आपने इतनी बड़े जो आप साथ लेकर ये चीज चल रही है ना, आई मस्ट से कि आप में भी बहुत हिम्मत है, आप बहुत अच्छी खातून है। और बेटा भी देगा, बेटी भी देगा। ठीक है जी। रोजे कैसे गुजर रहे हैं? रोजे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और आपके साथ साथ गुजर रहे हैं। हाँ, शुक्र। मैंने, मुझे तो टाइम का ही नहीं पता था, आज मैंने अचानक लगाया तो वो मुझे, मैं तो सुबह के टाइम पे रही हूँ। जी जी, आजकल हम शाम के टाइम पे मौजूद होते हैं। ठीक है, ओके मिसेस उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबकी मोहब्बत है, असल में सुबह के टाइम से वो अब उनको पता चल रहा है, तो शाम के टाइम पे वो कॉल करना शुरू होते हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात थी कि जो लोग ओरिएंटेशन का फर्क है ना, ओरिएंटेशन उसकी समत सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपकी, जब अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ और सीनों के हाल भी जानता हूँ, और फिर वो कह रहा है मुझे पुकारो, और फिर एक और जगह कह रहा है अल्लाह ताला सूरह बकरा के अंदर, आई थिंक इज 182 नंबर, हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है फ़इदा सअलका इबादी अन्नी, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं, फ़इन्नी करीब, तो मैं करीब हूँ। मतलब अल्लाह खुद कह रहा है मैं इतने करीब हूँ, किसी और से आके क्यों मांग रहे हो, किसी और से क्यों कह रहे हो? और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग, आई डोंट नो, हमें एक चीज, क्योंकि कुरान में सबसे सही बातें लिखी हुई हैं, कुछ भी झूठ नहीं है ना कुछ गलत है, तो हम वो बातें लोगों को बताएं। और उसमें एक बात, यूजुअली लोग जाते हैं मज़ारों पे और ये वो, मतलब उस पर माथे भी टेक रहे होते हैं, रो पीट रहे होते हैं, पता नहीं उनको क्या सुकून मिलता है, उनको मिलता होगा सुकून, ये होता है, ओरिएंटेशन का फर्क है। लेकिन मैं उनके लिए एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये रखा जाता है कि जो लोग मज़ार में हैं, जो जिनका वो, जो भी बुजुर्ग वहां पे होते हैं, कि उन तक हमारी बात पहुंचती है, फिर वो आगे पहुंचा देते हैं। ठीक है जी। सूरह फातिर है 35 नंबर सूरा, और उसकी 21 और 22 नंबर आयत में लिखा हुआ है कि ला यस्तविल अहया वल अमवात, नहीं है बराबर जिंदा और मुर्दा, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है सुनवाता है। वमा, ये इंपॉर्टेंट बात है 22 नंबर, वमा अंत बिमुस्मिउ मन फिल कुबूर, और तुम नहीं सुनवा सकते उनको जो कब्रों में है। तो जो अल्लाह कह रहा है, तो अल्लाह तो झूठ बोलता नहीं है, तो अब जो कब्र में है भाई, वो तो आपकी बात ही नहीं सुन रहा, तो आप उसको क्या सुनाएंगे और क्या आगे पहुंचाएगा? बात सारी यही आती है ना कि जब तक आप अल्लाह से डायरेक्ट अपना दिल और रुजू नहीं करेंगे, जब तक हमारा कैसे जहन जो है वो एक तरफ को जाएगा और नूर की तरफ जाएगा, जहाँ पे अल्लाह से हम डायरेक्ट होंगे नेचुरली, इट्स सो नेचुरल वैसे कि अगर गौर किया जाए। अच्छा, जाहिद साहब हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जाहिद साहब कराची से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं जाहिद बट दरवेश सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, आप कैसे, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक मैसेज जरा कन्वे करना चाह रहा था। जी जी जी, कि इसमें कोई शक नहीं है, रमजान शरीफ जो है ये अहले इस्लाम को अल्लाह ताला की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। जी जी बिल्कुल। अगर इस मुकद्दस महीने में हम लोग ये पार्टीज वगैरह देखेंगे, ये हर चीज जो है यहाँ पे मिलावट में जो है ना दिख रही है, अच्छा जाहिद साहब एक सेकंड आप होल्ड पे रहिएगा, क्योंकि हमारा जरा सा ब्रेक का टाइम है, आपने कहीं नहीं जाना, आपका जो है जवाब में मुकम्मल करेंगे, तो आप हमारे साथ ही भी लेते हैं ब्रेक। सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन This time check was brought to you by Lasanica Archimazil.
लासानी का अर्क महजल, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महजल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी का अर्क महजल। सिंध में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा का इम्कान। पीपल्स पार्टी और MKM का मुज़ाकरात के जरिए इख्तिलाफात दूर करने पर इत्तेफाक। जावेद हाशमी ने कहा है कि नए सूबा बनाने के लिए पंजाब को पहल करना होगी। और काबुल में नेटो का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 38 फौजी हलाक। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। आपने भी सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, पर कभी सोचा है क्यों? आज मैं आपको सुनाती हूँ एक घर की कहानी। ये होता था एक खुशहाल घराना, होता था खूब रज के खाना, पर अचानक वेल्थ जाने लगी जब हेल्थ में खराबी आने लगी। अब आप पैसा मत होने दीजिएगा, सिर्फ हबीब कुकिंग ऑयल, वीफा 5 की ताकत और 0 कोलेस्ट्रॉल का वादा, क्योंकि ये दिल का मामला है। इस रमजान कीजिए मीजान कुकिंग ऑयल और बनास्पति की भरपूर खरीदारी, क्योंकि मीजान लाया है मीजान रमजान हम सफर प्रोग्राम, जिसमें मीजान कराएगा पूरे रमजान बेशुमार रोजेदारों को रोजाना इफ्तार। वक्त की यही सदा है, इसी में फलाह है, इसी तो आइए मीजान के साथ रहमतों के इस सफर में हम सफर बनिए। मीजान रमजान हम सफर। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मनपसंद, मनपसंद। सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वल्हरमैन, कमा सरल बद्र फी दाजिन मिन अज़्ज़ुलम। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान रमजान स्पेशल, और हम आपके साथ मौजूद होते हैं शाम 5 बजे से लाइव। और हमारे साथ इस वक्त सलमा है। सलमा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, क्या हाल है? बिल्कुल जी ठीक ठाक है, रमजान मुबारक आपको। और आप सियालकोट से कॉल कर रहे हो? नहीं, बहावल नगर से कॉल कर रहे हैं जी। आप कुछ बात करना चाहते हो रमजान के हवाले से और हमारे टॉपिक के हवाले से? दुआ हमारा टॉपिक है। असद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, असद मलिक से भी बात करना चाहूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। अच्छा, आपका टॉपिक है दुआ। जी जी। तो दुआ के मतलब ये है कि इंसान की दुआएं कभी रद्द नहीं होती, जरूर कबूल होती हैं, बाज़ का किसी और सूरत में हो जाती हैं, हमें पता नहीं चलता है। अच्छा, कि हम मांगते हैं अल्लाह से कुछ और पूरा कुछ हो जाता है। ये भी होता है इंसान को, ये नहीं, इंसान को ये नहीं होना चाहिए कि मेरी तो दुआ कबूल हुई नहीं, मैं मांगता हूँ कबूल ही नहीं होती। हो सकता है वो आखिरत में भी वो वही दुआएं हमारे काम आए जो हम मांगते हैं, उसका अजर भी हमें आखिरत में शायद मिले उसका भी। और जो हम मांगते हैं दुनिया में, दुआ तो एक इबादत है ना, जिस तरह कहा ना कि जब आप अल्लाह पे यकीन करते हैं, अल्लाह से आप डायरेक्ट मांग रहे हैं, तो डायरेक्ट मांग रहे हैं। हाँ जी। तो और वैसे भी अगर जो सुना है, ये देखते हैं हम दरबारों पे जाके, या जो ये होते हैं
पीरों फकीरों को मानते हैं, कैसे दुआएं मांगते हैं सजदे कर करके, हालांकि वो अपनी कब्र से मक्खी नहीं उड़ा सकते। सही तो बात वो है। कैसे आगे हमारे करेंगे? ठीक है, फातिहा पढ़ें जाएं, लेकिन जो आजकल होता है दरबारों पे मज़ारों पे जो अयाशी और जो फहाशी देखी जाती है, क्या वो इस्लाम में उसकी इजाजत है इस बात की? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी दुआ जो है एक इबादत है, कहीं पर असर ये भी देखा जाता है कि दुआएं कबूल होती है लेकिन थोड़ा सा टाइम के बाद। ये डिपेंड कर देखें जी, टोटली मैंने एक तो इखलास, हाँ। कितनी सिंसेरिटी है, दूसरी बात अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी क्या है, वो चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, वो टेस्ट कर रहा है। और होता है वो कई दफा टेस्ट वो लंबा जरा एलोंगेट कर देता है वो उस पीरियड को जिसमें वो टेस्ट लेना चाह रहा है, और देखता है कितना सिंसियर है, स्टिल जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ। और अगर दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं तो इसके लिए बड़ी हमारे पास एक सुनहरी एक आयत है इस पर्टिकुलर के 17 नंबर सूरह बनी इसराइल 11 नंबर आयत। मैं साथ ये इसलिए भी मेंशन कर देता हूँ ये सूरत नंबर और आयत नंबर कि आप खुद भी कंसल्ट कर सकें और आप ये जांच सकें कि असद मलिक ने अगर एक बात की वो कितनी ठीक है या कितनी गलत है। तो ये आपके लिए और मजीद आसानी के लिए कि मैं अगर एक बात कर रहा हूं तो आप भी ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, बाद में उसको आप टैली कर लें। 17 नंबर सूरत है बनी इसराइल और उसकी 11 नंबर आयत में लिखा हुआ है वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिल खैर, और इंसान दावत दे लेता है शर को उन दुआओं में वो जो खैर के लिए मांग रहा है। ये कैसे? मुझे वो एक शर क्या है, कौन सा शर है? इंसान हाँ। दुआ कर रहा है खैर के लिए, हाँ। उसमें वो अपने लिए शर मांग रहा है, उसको पता ही नहीं है इस चीज का। तो अगर वो दुआ कबूल नहीं हो रही तो उसका फायदा है इसके अंदर, फायदा है। अच्छा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आप कहीं गलत हैं और वो चीज आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि वो चीज ठीक नहीं, तो इसलिए दुआ वो कबूल देखिए ना, हो सकता है कि अभी मैं कहूँ मेरा कोई 15 करोड़ का कोई बॉन्ड निकला है, हाँ। ठीक है जी, वो निकल आता है, मुझे पता नहीं है वो अपने साथ क्या चीजें लेके आ रहा है, क्या खराबियां लेके आ रहा है, ठीक है ना। बात वही तकासुर की आ गई, ज्यादती हो जाएगी, वो हलाकत है उसके अंदर। और क्योंकि आजकल लोग पैसा, गाड़ियां, घर, ये चीज मांग रहे हैं ना, सही है, ठीक है, प्रोविजंस मांग रहे हैं, भूखा ना मरना पड़े, 7 पुश्तों के लिए सब जमा कर लें, ठीक है ना, पहले से जी। तो अगर वो नहीं कबूल हो रही दुआ तो इसका मतलब है कि इसमें आपका फायदा है, और फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं भी बात जरूर इसको कंटिन्यू करूंगी कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो फैज साहब, आप कराची से बात कर रहे हैं, आपका सवाल दुआ के टॉपिक के हवाले से। जी, तो दुआ के बारे में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दुआएं किसी की हद नहीं जाती, कुरान में लिखा है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, माजरत के साथ आवाज क्लियर नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर ये चीज कि जो इंसान अपने लिए शर मांग रहा है उसकी दुआ कबूल हुई थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो इंसान ये सोचकर कि अल्लाह ने तो मेरी दुआ कबूल ही नहीं की, मैंने तो ये चीज मांगी, जिद्दी हो जाता है बहुत ज्यादा, और जिसकी वजह से वो अक्सर अल्लाह की राह को छोड़ भी देता है, क्योंकि वो जो चीज को चाह रहा था, मतलब उसकी शायद ये एक सेल्फिशनेस थी, उसकी उसकी नासमझी थी और जहालत थी। जाहिल ऐसी कोई गाली नहीं है, जाहिल मतलब अगर मैं जाहिल हूँ उसका मतलब मुझे किसी चीज का पता नहीं तो मैं उस मामले में जाहिल हूँ। हम कहते हैं तुम तो बड़े जाहिल, ऐसी बात नहीं, गाली नहीं है, जाहिल इसको पता नहीं है, अनइन्फॉर्म्ड, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो जाहिल है। तो अपनी जहालत में, नासमझी में, पता ही नहीं है उसको, वो इस तरह से अल्लाह ताला से वो आमने सामने हो जाता है, जो कि गलत बात है। क्योंकि कुरान में एक चीज लिखी हुई है, सूरह अंबिया है 21 नंबर सूरह, और उसकी 23 नंबर आयत में लिखा हुआ है ला युसअलु अम्मा युफअल, कि कोई नहीं सवाल कर सकता उससे कि वो क्या फेल कर रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। वहुम युसअलून, सवाल तो उनसे किया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि वो बॉस है, हम उसके नौकर हैं, ठीक है जी, हम उसकी क्रिएशन है, हम उससे सवाल नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते सवाल। तो ये बड़ी, और फिर सब्र करना, अगर आप नहीं तो सब्र के साथ, क्यों कि जब आप 2 की 153 में आ जाए, या लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र, ईमान वालों सब्र और कनेक्शन सलात के साथ, नमाज के साथ मदद लो, ठीक है जी। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह है सब्र करने वालों के साथ। तो जब आप सब्र कर रहे हैं तो आप, ये अल्लाह का वादा है, झूठ नहीं हो सकता, तो आपके साथ, फिर अल्लाह ताला आपके साथ आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका काम अपने आप हो जाएगा। और सब्र की लिमिट क्या है, कब तक करना है, लोग कहते हैं कब तक सब्र करें यार, इसकी लिमिट है सूरह यूनुस 10 नंबर सूरह 109 नंबर लास्ट आयत है, उसमें लिखा हुआ वत्तबि मा युहा इलैक, उसकी इत्तबा, फॉलोइंग करता रहे जो तेरी तरफ नाजिल किया गया है, वस्बिर, और सब्र करता रहे,
कब तक? हत्ता यहकुम अल्लाह, हत्ता कि अल्लाह की जजमेंट आ जाए, वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और वो सबसे अच्छी जजमेंट करता है। तो जब आप सब्र करके उसकी जजमेंट का इंतजार करेंगे, अच्छा फल हासिल करने के लिए सब्र करने की जरूरत है उसके। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आमिर साहब आप लाहौर से कॉल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, जरा सा ऊंचा कहिएगा, आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो जी आमिर साहब, आवाज जो है जरा सी क्लियर नहीं थी, आप दोबारा से कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये इसकी बात आती है जहाँ पर ये सब्र की आ गई कि सब्र जितना करेगा इंसान उतना अल्लाह ताला ज़ाहिर है उसके लिए कोई बेहतर चीज रखी हुई है। देखिए सब्र वो प्रैक्टिस है जो प्रॉफिट्स ने की है। सही है। हर प्रॉफिट की प्रैक्टिस में शामिल थी सब्र और सलात, ये दोनों। अच्छा, सलात के भी बहुत, अगर इसको लेकर आए सब्जेक्ट को तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। सलात सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें पढ़ लेना नहीं है, बल्कि इस पे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन और इसकी समझ। बेसिकली देखिए बात सुने आप, अल्लाह ताला की जो कुरान में जो आयतें लिखी हुई हैं उनके अंदर मैसेजेस हैं, उन मैसेजेस को समझना है, और वही सही लोग हैं जो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्यों कि 74 नंबर आयत है सूरह फुरकान, 25 नंबर सूरह, उसमें लिखा हुआ है कि वल्लज़ीना इज़ा ज़क्करू बिआयाति रब्बिहिम, और उन लोगों को जब उनके रब के आयात के साथ जिक्र फिर आ गया, नसीहत की जाती है, लम यखरू अलैहा, वो ऐसे ही नहीं गिर पड़ते उसके सुम्मम उम्याना, अंधे और बहरों की तरह समझ के सजदा करते हैं। आप ये देख लीजिए कि हमारे आज कितने लोग हैं जो इमाम के पीछे खड़े अल्लाहु अकबर सीधा ठा करके सजदे में चले जाते, पता भी नहीं कि वो आगे बोला क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर भी साइमा, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साइमा, आप दोनों को ठीक ठाक है? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। आपको रमजान मुबारक बहुत बहुत। आज माशाल्लाह 5 मुलाकात आपसे बात हो रही है बल्कि। जी हाँ, और आज का टॉपिक के लिहाज से बात करूंगी। टॉपिक बहुत अच्छा है और असल में बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं। जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे टॉपिक के हवाले से? बस जो बातें हो रही हैं काफी अच्छी हैं। बस यही कहना चाहूंगी कि लोगों को शऊर आना चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, बजाय कि वो गैर अल्लाह से मांगते हैं, दरबारों मज़ारों पे जाके जो मांगते हैं वो सही नहीं होता। अगर इतने सजदे वो सिर्फ अपने रब के सामने करें तो उनकी सुनी जाएगी, बजाय कि वो जो इस दुनिया में है ही नहीं और जो सुन ही नहीं सकते उनके सामने जाके करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। उनमें शऊर आना चाहिए, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों चाहे जो तालीम याफ्ता नहीं है, उन दोनों में। जिनको आज तक इल्म नहीं था, अगर उनको इल्म मिल गया तो वो इस बात को जरूर कंसीडर करना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी मतलब उनको भी इल्म नहीं था ना इस बात का, तो अगर आज वो सुन रहे हैं इस बात को और उस पर फिर भी अमल नहीं करते हैं तो फिर तो वो अंधेरों में है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सामा, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में यहाँ पर जो बेचैनी बेसकूनी, उनमें बहुत सी वजहों के साथ साथ एक वजह ये भी आती है कि डायरेक्ट अल्लाह से कांटेक्ट नहीं हो पाता। चलिए, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें। हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। जीवन के झलके सारे रंग, हर लम्हा बन जाए मनपसंद। फूलों के ढलके मोती जब संग, हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। हर लम्हा बन जाए मनपसंद। गोल्डन सन बढ़ाए सहर अफ्तार का मजा। सहरी के पराठे हों या अफ्तार के चटपटे पकौड़े, गोल्डन सन से बने हर खाना मजेदार। रमजान मनाएं गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन, सुनहरे दिन का आगाज।
इस रमजान रहे घर घर मीजान, क्योंकि अब मीजान कुकिंग ऑयल और बनास्पति पर आपको मिले 80 रुपए तक की बेमिसाल बचत, ताकि रहमतों और बरकतों के इस महीने में मिले सेहत, लज्जत और बचत साथ साथ। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हांडी में पकेगी तो खुशबू यूं फैलेगी कि सब कहें, कि सब कहें, सब कहें हर दिन है पार्टी हमारे इस घर में, कि सब कहें हर दिन है पार्टी हमारे इस घर। हांडी खुली तो घर महक उठा। पता है कल रात में किससे मिली? सारा और मैं स्कूल में साथ पढ़ते थे। सारा लॉस्ट सो मच वेट, वो इतनी अपनी गर्लफ्रेंड की बोरिंग बातों से कैसे बचे? फर्स्ट ड्रिंक, देन थिंक। पर कुछ भी हो, यू नो, सारा की फिगर अच्छी है। सारा काफी इंटरेस्टिंग साउंड करती है यार। तो कब मिला रही हो उससे? अरे मैं क्यों तुम्हें अपनी बोरिंग बातें सुना रही हूँ? Remember, first drink, then think. Sprite, University of Freshology. हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मनपसंद, मनपसंद। الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين إلى حرمين। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल। और नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद होते हैं शाम 5 बजे से। हमारा आज का टॉपिक है दुआ, और कई ऐसी पॉइंट्स आपको बताएं कि दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही होती हैं। और यहाँ पर ये भी जो अगर हम छोटे पॉइंट्स को अगर नोट करेंगे, एक तो ये आ जाता है असद के ये कि एक तो कहीं और गैर अल्लाह से मांगना, दूसरा ये कि इंसान को देर से मिलता है, लेकिन थोड़ा उस पर सब्र करना जरूरी है। जहाँ पर लोग सब्र नहीं करते हैं वहां पर फिर ये कि उनके लिए वो उनकी रास्ते बदल जाते हैं। हाँ। फिर वो अपने तौर पर चीजों को हाथ में ले लेते हैं। अच्छा, ये जो अपने तौर पर लेते हैं, क्या ये वही राह होती है जो गलत राह हो जाती है? यकीनन देखें ना, जब अल्लाह ताला आपको एक ऑर्डर दे रहा है, आप उससे हट के डिविएट करके दूसरी की कुछ कर रहे हैं, तो वो गलत ही होगा। अल्लाह आपको सही चीज बता रहा है, उससे हट कर उसको छोड़कर कुछ आप दूसरा पकड़ेंगे तो वो गलत होगा ना। सही। तो उसका रिजल्ट भी गलत ही होगा, चाहे आपको सही होते हुए नजर आ रही है चीजें। सही है। अच्छा, और सॉरी आपकी बात कट रही है। अगर अल्लाह की बात मान रहे हैं, चीजें खराब होती हुई नजर आ रही हैं आपको, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ये हो नहीं सकता कि ना, मेरी जिंदगी का असूल है और मेरी जिंदगी का अपना एक्सपीरियंस एक बार नहीं हर बार का। अच्छी यही चीज आएगी सुकून की जो बात कर रहे थे कि जिन लोगों को सुकून नहीं आता, और वो अगेन वही वाली बात कि उनकी वो चाहते हैं ख्वाहिश फौरन से पूरी हो जाए, पैसा फौरन, पैसा सबसे ज्यादा इंसान की जिंदगी वो ये समझता है कि इम्पोर्टेंट है, बस फौरन से आ जाए, फौरन से उसका जो है ना उसके काम हो जाए, जिसकी वजह से सुकून उसका देखिए जी, हम जैसे जैसे अल्लाह ताला के ऑर्डर से, उसके वर्ड से, उसकी कनेक्शन से, सलात से दूर हो रहे हैं, बेसुकूनी होगी। क्योंकि 30 नंबर सूरह राद है, 28 नंबर आयत में लिखा हुआ है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और जान लो कि तुम्हारे दिलों का इत्मीनान, तुम्हारे दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र, नसीहत जो तुम्हें की जा रही है उसमें है, समझ जाओगे, सुकून पालोगे। ठीक है जी। कैसे? वापस आ जाए 47 नंबर सूरह, 2 नंबर आयत, सूरह मोहम्मद, कफ़्फ़र अन्हुम सय्यातिहिम व अस्लह बालहुम, और उनके हालात दुरुस्त कर दिए जाएंगे। इंसान की बुराई उससे हट जाती है। अल्लाह ने ये मेंशन नहीं किया, कफ़्फ़र अन्हुम सय्यातिहिम, उनसे हर बुराई, इस दुनिया की उधर की भी, स्पिरिचुअल भी और फिजिकल भी, सोशल भी, मॉनिटरी भी, हर किस्म की बुराई और हर किस्म के उनके हालात दुरुस्त किए जाते हैं। प्रोसेस बेशक स्लो हो सकता है, लेकिन हालात दुरुस्त होंगे। लेकिन वो नहीं कि जब इंसान को चीज फौरन से मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। ये भी यहाँ पे मसलत होती है, जब इंसान को आराम से चीज मिलती है तो उसकी कदर ज्यादा होती है। हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी हमारे साथ कौन है? इमरान साहब। कहाँ से? इस्लामाबाद से। जी इमरान, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ और असद की बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 जी। और बहुत सवाल है आपका? जी, इसी हवाले से, हमारे टॉपिक के हवाले से कुछ सवाल करेंगे? असद से बात कीजिए। आज दुआ का टॉपिक है, तो दुआ का टॉपिक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि दुआ मुकुल इबादा। दुआ जो है वो इबादत का मगज है और दुआ मुसीबतों और बलाओं को टालती है। हमें जो है दुआ मांगते हैं, दुआ की जब हम बात करते हैं तो माँ की दुआ जो है हमें सुबह शाम आते जाते हैं। माँ की दुआ, माँ अपनी जो वालिदा मोहतरम से दरख्वास्त करनी चाहिए जब कोई मुसीबत, नौकरी का मसला है, 100 तरह के मिसाइल ना आजकल तो, और कराची के जो हालात है, तो घर से जब निकलते हैं बच्चे तो माँ जो है दुआएं दे के जब रवाना करी, सारा दिन दुआएं मांगती रहती है कि मेरे बच्चे खैरियत से वापस आ जाए। तो दुआ में इसमें बहुत अमल दखल है। इस सब जो भी हालात हैं उसके लिए अगर हम दुआओं का इस्तेमाल करें, अल्लाह से मांगे, तो मेरा ख्याल है कि सारे हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। अच्छा, आपकी बात से एक पॉइंट और भी यहाँ पर निकल कर यही आता है कि एक तो दुआएं, तो दुआ जो मांगी जा रही है जिससे माँ की दुआ भी हो जाती है और दूसरा ये कि बाप की भी। अच्छा, बाप माँ, कुरान के अंदर माँ और बाप का दर्जा एक है, याद रखिएगा। हमारे यहाँ पे ये चीज बड़ी फ्लरिश कर चुकी है कि कोई ऐसी अहादीस हैं जो मुस्तनद नहीं है और कुरान से क्लैश में आ रही हैं, जिनमें सबसे बड़ी हदीस ये है कि एक शख्स हजूर सल्लल्लाहु के पास गया, उसने फरमाया या रसूलल्लाह मेरे पास मेरे माँ बाप दोनों हैं, तो मैं किसकी ज्यादा खबरगिरी करूं? तो उन्होंने कहा अपनी माँ की। तो उसने फिर पूछा, फिर अपनी माँ की, फिर पूछा, फिर अपनी माँ की, फिर पूछा आप अपने बाप की। पहली बात तो यह है कुरान के अंदर लिखा हुआ है 33 नंबर सूरह अहज़ाब 70 नंबर आयत, उसमें लिखा हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो तक़वा करो, रब से गार्ड लो और सीधी बात किया करो। तो ये पॉसिबल नहीं है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कह दें 3 दफा और फिर 1 दफा, तो कहेंगे भाई ये ऐसे है, पहले माँ या फिर बाप। कोई डाउट वाली बात नहीं करेंगे ना, या साथ कह देते भाई 75% इस तरह से उनके लिए, फिर अपनी माँ की, फिर अपनी माँ की, वैसे कभी नहीं कह सकते। दूसरी बात, कुरान के अंदर 4 जगह 17 जगह 17 जगह पे वालिदई का, वालिदई, वालिदैन, मैं आपको 4 रेफरेंसेस बता रहा हूं, काइंडली अगर आप इसको नोट डाउन कर लें। सूरह बकरा की 83 नंबर आयत, वबिल वालिदैनी एहसाना, शिर्क के बाद, शिर्क से मना किया गया, उसके बाद दूसरी बात वबिल वालिदैनी एहसाना। फिर 4 नंबर सूरह निसा 36 नंबर आयत, वला तुश्रिकू बिल्लाहि शैआ, ठीक है जी, मत करो वबिल वालिदैनी एहसाना। मतलब ये वालिदैन जो है ये पहले 2nd नंबर पे वालिदैन दोनों के लिए, वालिद और वालिदा दोनों के लिए, कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि माँ ऊपर है या बाप ऊपर है, ठीक है, कुरान में कोई सेग्रीगेशन नहीं, दोनों का कहा है। और फिर 6 नंबर सूरह अनाम 151 नंबर आयत, सेम बिल वालिदैन एहसाना। फिर सबसे बड़ा रेफरेंस है, फिर 23 नंबर आयत है 17 नंबर सूरह बनी इसराइल, उसका दूसरा नाम अल इसरा भी है। आप जहां भी देखेंगे, और 17 जगह कुरान के अंदर वालिदैन मिला के दोनों की बात की जा रही है, एक जगह भी, हाँ सिर्फ एक जगह वालिदा की बात की कि वो उसने तुझे पेट में भी रखा तो वो भी कराहत में रखा, और फिर तुझे जन्म दिया वो भी कराहत में रखा, तकलीफ में, तकलीफ की बात जो की वो वालिदा, लेकिन आपके हुकूक दोनों की तरफ एक जैसे हैं, याद रखिएगा, मतलब दोनों के साथ सलूक एक जैसा करना है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ये तो कोई आई थिंक वो होल्ड पर मुझे लग रहा है चले गए थे, कुछ अजीब सी बात आ रही थी। अच्छा, यहाँ एक सवाल और है मेरा, जहाँ पे दुआओं की बात आती है, क्या ऐसा शख्स जो ईमानदारी, अभी एक कॉलर ने कॉल भी किया था, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात उन्होंने बताई थी कि सियालकोट में 2 बच्चियां जो हैं वो जहाँ पे कोई मिलावट वाला कोई बिस्किट उन्होंने खा लिए थे जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब एक ऐसा शख्स जो मिलावट भी करता है, एक ऐसा शख्स जो सिग्नल भी तोड़ता है, एक ऐसा शख्स जो हमारे मुल्क के कानून भी तोड़ा है, एक ऐसा शख्स जिसने जो अपने वालिदैन के साथ या हुकूकुल इबाद अपने अदा नहीं करा, और फिर भी वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी दुआ कबूल हो। देखिए जी, एक्सपेक्टेशन, ये आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने अपने बात में शामिल कर दिया, वर्ड एक्सपेक्ट करता है। हम सब जितने मर्जी अच्छे हों, जितने मर्जी बुरे हों, अल्लाह ताला से एक ही तरह एक्सपेक्ट करते हैं, याद रखिएगा इस बात को, चाहे बुरे भी हों। हाँ, मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी भी होऊंगा, मैं अल्लाह से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो एक दिन मुझे माफ कर देगा। अब अल्लाह के ऊपर है कि वो मुझे तौफीक देता है नहीं माफी मांगने की, या वो वक्त लाता है नहीं, या वो हालात मेरे लिए बनाता है कि नहीं, कि मैं वाकई एहसास इस बात का दिल में लाऊं कि मैंने वो काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए, तो फिर मैं अल्लाह से माजरत चाहूं और मैं तौबा करूं, और फिर मैं आइंदा के लिए, क्योंकि तौबा के बाद दोबारा से वो काम ना करने की शर्त है,
سورہ آل عمران 135 نمبر آیت کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا ذنوبهم کہ وہ لوگ جو کوئی فحاشی کا کام کر لیتے ہیں. فحاشی اوریانی نہیں ہے. اچھا, فاحشہ کہتے ہیں ہر اس کام کو جو بڑی بے رحمی سے اللہ کے حکم کو توڑ دیا جائے. اور یہاں پہ صرف یہ اوریانی کی بات آ جاتی ہے. نہیں, وہ اوریانی ہوتی ہے, وہ ہاں ایگزیکٹلی. اچھا, کوئی فحاشی کا کام کر لیں یا کوئی اور اپنے نفسوں پہ ظلم کریں یعنی گناہ کر لیں, ذکر اللہ تو اللہ کا ذکر کریں, فاستغفروا ذنوبہم پس ان کو استغفار دیا جائے گا ان کے گناہوں سے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور کون ہے اللہ کے علاوہ معاف کرنے والا گناہوں سے. لیکن شرط ہے ولم یصروا علی ما فعلوا, پھر وہ دوبارہ اصرار نہیں کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں. سیم بات کی جا رہی ہے نیکسٹ سورہ نساء 17 نمبر آیت کے اندر کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جہالت سے نہ سمجھی میں کچھ گناہ کر لیا. ثم یتوبون من قریب, پھر وہ جلد ہی تائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کے لیے اللہ کی طرف سے معذرت اور توبہ لکھی ہوئی ہے. لیکن وہ جو بار بار یعلمون السیئات کہ جان بوجھ کے گناہوں کرے چلے جا رہے ہیں, ان کو معافی نہیں ہے. لیست التوبۃ علی الذین, کہ ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. یعلمون السیئات مطلب وہ جو کرتے ہیں جان بوجھ کے گناہ کرتے پہ چلے جا رہے ہیں. حتی اذا حضر احدکم الموت, حتی کہ ان میں سے کسی ایک کے پاس موت حاضر ہو جاتی ہے تو کہتا ہے پھر وہ قالا, پھر معافی نہیں ہوتی. ہاں, وہ کہتا ہے کہتا میں اب معافی مانگتا ہوں. معافی وہ فرشتہ سے دیکھ لیا جو اس کی روح قبض کر رہے ہیں, وہ معافی پھر نہیں. فرشتے آتے ہیں بالکل. وہ اس وقت جو ہے وہ 16 نمبر سورہ نحل 28 نمبر آیت, الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمین انفسہم, وہ جو فرشتے آتے ہیں تم میں سے ان لوگوں کو وفات دینے کے لیے, اس وقت جو ہے معافی قبول نہیں ہوتی. چلیے تھینک یو سو مچ. آج بڑا انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ سبجیکٹ رہا. انشاءاللہ نیکسٹ پھر کوئی اور سبجیکٹ کے ساتھ ضرور آئیں گے. اور بتا دیجیے گا کہ آپ اگلے ہفتے لاہور جا رہے ہیں نہیں جا رہے؟ نہیں, ابھی تو نہیں جا رہا, ہم جانا تھا لیکن فادر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی, بلکہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور آپ سب دیکھنے والوں سے دعا کہ میرے فادر کے لیے دعا کریں, وہ بہت اچھے انسان ہیں. اور بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کو صحت دے, میری دل سے دعا ہے. اور عید ہمارے ساتھ وہ بالکل فٹ ہو کے کریں, مزہ انشاءاللہ بالکل. اور ہمارے ساتھ آپ یہاں پہ موجود ہیں انشاءاللہ. چلیں صحیح, تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب, ہمارے ساتھ ہی رہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دیں کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو, خدا تم کو دوست بنا لے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, اس ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
एक्वास्लिम, मेरी फिटनेस मेरा राज। This time check is brought to you by हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। सिंध में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा का इम्कान, पहले मरहले में 18 टाउन्स बहाल होंगे। पीपी और एमक्यूएम में मुज़ाकरात के जरिए इख्तिलाफात दूर करने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद कहते हैं कि सियासी चपकलिश की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि बाबर आवान का कहना है कि इल्जाम तराशियों का सिलसिला रोकने के लिए इक़दाम तो करना होंगे। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का पीर पगाड़ा को फोन, हुकूमत और एमक्यूएम के मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में लिया। जावेद हाशमी का कहना है कि नए सूबे बनाने के लिए पंजाब को पहल करना होगी। मसाइल के हल के लिए हो सकता है कि लाहौर, कराची और क्वेटा को सूबा बनाना पड़े। कराची में मूसा लेन के इलाके में मुनहदम इमारत के मलबे से मज़ीद 2 अफराद की लाशें बरामद, हलाकतों की तादाद 21 हो गई। सिंध हुकूमत का जाबाहक अफराद के मुरसा के लिए 3-3 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। रेलवे का बहरान जारी, ट्रेनों की आमदोरफ्त में घंटों ताखीर की वजह से क्वेटा, लाहौर, पेशावर और दीगर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर परेशान। और अफगानिस्तान में नाटो का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 38 फौजी हलाक। PTCL रमजान ऑफर, ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल अब हुआ अनलिमिटेड सिर्फ 299 रुपए में। तालीम, बैनुल अक़वामी खबरें या कोई रिसर्च, अब किफायत और डाउनलोड्स दोनों ही अनलिमिटेड। ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल पैकेज हासिल करें और अनलिमिटेड डाउनलोड का मजा लें। तो ऑर्डर कॉल 0800 80800। अस्सलाम वालेकुम, शाम से आप हैं वक्त के साथ और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। सबसे पहले पीपी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बढ़ती हुई क़ुरबतों के हवाले से आपको अपडेट फराहम करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती हुई क़ुरबतों के बायस एमक्यूएम की दोबारा हुकूमत में शमूलियत के भी इम्कानात रोशन हो गए हैं। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद और सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद सूरत हाल में तेजी से तब्दीली आई है। बास कानूनी मामलात का जायजा लेने के लिए बाबर आवान और डॉक्टर इशरतुल इबाद के दरमियान होने वाली मुलाकात भी दोनों जमातों के लिए खासी हौसला अफजा साबित हुई है। ज़राए के मुताबिक नई सियासी मुफाहमत के नतीजे में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किए जाने का इम्कान है। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फरजाना राजा तकरीब से खिताब कर रही हैं। के लिए मैं न सिर्फ शुक्रिया अदा करती हूँ बल्कि मैं आपकी इस हिम्मत को और वक्त निकालने को रमज़ान में इसको मैं खराज तहसीन भी पेश करती हूँ। और ये चीज़ साबित करती है कि जो लोग भी यहाँ बैठे हैं वो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ मोहब्बत का जो जज्बा रखते हैं वो उसको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमेशा एक फ़ोन कॉल पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अपने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले। इनकी भी पाकिस्तान और पंजाब के अवाम से जो मोहब्बत है वो साफ सामने ज़ाहिर होती है और मैं इनका भी इस बात पे शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाम ही उस तहरीक को चलाना और उस तहरीक के ज़रिए लोगों का जो हक है, आवाम का जो हक है, उनकी दहलीज पर उनके दरवाजे तक पहुंचाने की जो कमिटमेंट है उसको पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। और ये कमिटमेंट हम पहले भी पूरी करते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरी कर रहे हैं। और मैं इसमें ज़रूर खराज तहसीन पेश करूँगी सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को
کہ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے دن رات محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ویژن، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن، ان کی سوچ، ان کے نظریے کے مطابق پاکستان کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے جس طرح سے وہ کوششیں کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور پر عمل کر رہے ہیں، وہ قابل تحسین ہے اور خراج تحسین کے قابل ہے۔ انہوں نے آج تک جس طرح میں نے گورنر صاحب کے لیے کہا، ایسے ہی صدر پاکستان نے اور وزیر اعظم پاکستان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے لاکھوں کروڑوں عوام کے لیے اپنے صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس اور پاکستان کے تمام گورنر ہاؤسز اور وزیر اعلیٰ ہاؤسز کے دروازے کھول دیے ہیں، اور سوائے وزیر اعلیٰ پنجاب کی، اس کا میں بعد میں ذکر کروں گی کہ کہاں کہاں کیا مسائل ہیں، کیونکہ میں کبھی بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ اپنے کام پر فوکس رکھتی ہوں اور جو مشن دیا گیا ہے اور اس مشن کو چیلنج سمجھ کر آگے تک عوام تک ان کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے میں اپنا کام۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام راجہ تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی عوام کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پر پہنچا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ رہیے ہمہ وقت باخبر، رہیے وقت کے ساتھ۔ اسی کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ میاں میں تو چھوٹی بچی ہوں نا، آپ تو چھوٹے بچوں کی دعا قبول کرتے ہیں نا۔ اللہ میاں یہ سب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میاں میرے ماں باپ کو صحت دے۔ اللہ میاں جتنے بھی اس دنیا میں بیمار لوگ ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ اللہ میاں مجھے پڑھائی میں دل لگا، اللہ میاں مجھے پڑھائی میں دل لگا کر، اللہ میاں میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالی۔ الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
चीज मीजान में अच्छी लगती है। PTCL रमजान ऑफर ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल अब हुआ अनलिमिटेड सिर्फ 299 रुपए में। तालीम, बैनुल अक़वामी खबरें या कोई रिसर्च, अब किफायत और डाउनलोड्स दोनों ही अनलिमिटेड। ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल पैकेज हासिल करें और अनलिमिटेड डाउनलोड का मजा लें। तो ऑर्डर कॉल 0800 80800। जीवन के झलके सारे रंग, हर लम्हा बन जाए मन पसंद। बोलों के ढलके मोती जब संग, हर लम्हा बन जाए मन पसंद। मन पसंद, हर लम्हा बन जाए मन पसंद। पता है कल रात में किससे मिली? सारा और मैं स्कूल में साथ पढ़ते थे। सारा लॉस्ट सो मच वेट, वो इतनी अपनी गर्लफ्रेंड की बोरिंग बातों से कैसे बचे? फर्स्ट ड्रिंक, देन थिंक। बट कुछ भी हो, यू नो, सारा की फिगर अच्छी है। So, सारा she can carry काफी on both इंटरेस्टिंग sides. साउंड करती है यार। तो कब मिला रही हो उससे? अरे मैं क्यों तुम्हें अपनी बोरिंग बातें सुना रही हूँ? Remember, first drink, then think. Sprite, University of Freshology. गोल्डन सन बढ़ाए सहर और अफ्तार का मजा। सहरी के पराठे हों या अफ्तार के चटपटे पकौड़े, गोल्डन सन से बने हर खाना मजेदार। रमजान मनाएं गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन, सुनहरे दिन का आगाज। PTCL रमजान ऑफर ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल अब हुआ अनलिमिटेड सिर्फ 299 रुपए में। तालीम, बैनुल अक़वामी खबरें या कोई रिसर्च, अब किफायत और डाउनलोड्स दोनों ही अनलिमिटेड। ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल पैकेज हासिल करें और अनलिमिटेड डाउनलोड का मजा लें। तो ऑर्डर कॉल 0800 80800। इस रमजान कीजिए मीजान कुकिंग ऑयल और बनस्पति की भरपूर खरीदारी, क्योंकि मीजान लाया है मीजान रमजान हम सफर प्रोग्राम, जिसमें मीजान कराएगा पूरे रमजान बेशुमार रोजेदारों को रोजाना इफ्तार। वक्त की यही सदा है, इसी में फना है, इसी तो आज ये मीजान के साथ रहमतों के इस सफर में हम सफर बनिए। मीजान रमजान हम सफर। PTCL रमजान ऑफर ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल अब हुआ अनलिमिटेड सिर्फ 299 रुपए में। तालीम, बैनुल अक़वामी खबरें या कोई रिसर्च, अब किफायत और डाउनलोड्स दोनों ही अनलिमिटेड। ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल पैकेज हासिल करें और अनलिमिटेड डाउनलोड का मजा लें। तो ऑर्डर कॉल 0800 80800। सबकी पसंदीदा जीतो हाथ के हाथ, शादी की रिवायत के साथ यकीनी इनाम हाथों हाथ। स्क्रैच कर लो हाथ के हाथ, फिर कार्रवाई कुल कैच के साथ लाखों रुपए के इनामात। हबीब से जीतो हाथ के हाथ। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मन पसंद, मन पसंद। सय्यदुल कौनैनि वत्थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वत्थक़लैन, इज़ा हरमैन कमा खुशामदीद आपको सलाम पाकिस्तान में, और आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। और अब हम आ गए हैं मनपसंद किचन में। मैं नाजिया मलिक आपके साथ, और मेरे साथ हैं डॉक्टर बिल्किस। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं? आज भी हम बहुत सारे टोटके, बहुत सारी चीजें बताएंगे। और आज जो मैं बनाने जा रही हूँ, मैं बना रही हूँ खवसे। खवसे बड़ी मजेदार डिश होती है। इसमें डलते हैं नूडल्स, मेमनों की होती है। बड़ी अच्छी डिश है, मैं कहती हूँ बड़ी ब्लेसिंग डिश है ये वाली, कि इसमें आपको बड़ी सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट मिल जाती हैं। इसमें आपको नूडल्स मिल जाते हैं, कड़ी होती है, कड़ी के साथ फिर आप इसमें चिकन की, या फिर आप बोटी का, या फिर आप कीमे का मसाला जो है इसके साथ खाएं। यमी यमी, में तो अभी से ही दिल कर रहा है कि मैं फौरन से जो है ना बस इफ्तार हो तो खाऊं ये। तो खैर ये बड़ी मज़ेदार डिश है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या डालेंगे।
जब सबसे पहले जो मुझे चीज़ करनी है, जैसे मैं ज़ीरा जो है ना भून कर, क्योंकि फिर ये इस्तेमाल में आ जाएगा, मैं ज़ीरा भून कर डालूंगी। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे डॉक्टर बिल्किस डायबिटिक पेशेंट के ऊपर कि उनको रमज़ान के दिन में, क्योंकि वो जो है उन रोज़ा भी रख रहे होते हैं और उनके सबसे परेशानी होती है कि शुगर लेवल हाई और लो चलता रहता है, तो उनको बेसिकली क्या क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत आसान सी एक तरकीब है कि अगर शुगर पेशेंट रोज़ा रखते हैं तो जो रात का खाना, जो रात को वो डिनर लेते हैं, हाँ, वो सहरी में ले लें। अच्छा, सहरी में ले लें। होता क्या है कि देखिए, आप रात को खाना खाने के बाद फिर पूरा एक वक्त आपका गुजरता है जिसमें आप खाना नहीं खाते। सही है। तो इसी तरह होता है कि आप फिर खाली पेट रहते हैं। जो आपका शुगर का डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करता है, जो उसने आपको मील का जितना खाने का कहा है, वो सब जो आप सहरी में ले लें, तो उससे जो है फिर आपका इंसुलिन जो है ना बढ़ना कम होना। मतलब सबसे पहली टिप ये करनी चाहिए कि आपने सहरी में खाना खा लें। और इफ्तार में क्या खाएं? फिर इफ्तार में आप लाइट सा, जिस तरह आप सुबह उठ के नाश्ता करते तो वो इसी तरह हाँ, वो आप इफ्तार में करें। तो आप थोड़ा उल्टा कर लें, उससे भी काफी फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, वो शॉर्ट मील्स ले सकते हैं या नहीं? उसमें तो फिर रोजा खोलने के बाद शॉर्ट मील्स अगर लेना हो और उनका डॉक्टर ने उनको बताया हो तो जरूर लें। ठीक है, सही है। फिर आप जरूर याद करनी चाहिए। इन लोगों को एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन अभी रोजे बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो रोजों के दरमियान मैं नहीं समझती कि एक्सरसाइज हाँ, लोग अक्सर जो है वो रोजे के दरमियान भी चले जाते हैं एक्सरसाइज करने। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है जीरा पहले से भून के रख लिया, क्योंकि मुझे जीरे की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने कहा इसको पहले से ही भून कर रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले कड़ी का जो है ना कड़ी चढ़ा देती हूँ। मैंने लिया आधा किलो दही। अब इस आधा किलो दही में तकरीबन मैं डाल दूंगी इसमें 2 टेबल स्पून बेसन, देख रहे हैं बेसन के, और साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी ये कोकोनट क्रीम है। अब ये कोकोनट क्रीम का बनाने का भी आपको तरीका बता देती हूँ। ये मिलती है आराम से, बाजार से आपको मिल जाएगा पैकेट कोकोनट क्रीम का। और इसको आपने जो है ना 1 कप पानी में तकरीबन 3 टेबल स्पून कोकोनट क्रीम डालने, 1 कप गर्म पानी में, और उसके बाद ये कोकोनट क्रीम बन जाएगी। अच्छा, इसको मैं जरा सा हिलाती रहती हूँ। और अच्छा, देखिए आपने इसमें बेसन डाला है ना, बेसन जो है वो भी शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कि आप बेसन की रोटी बना के खाएं। ठीक है, वो भी मतलब कि बेसन की जो रोटी है उसमें आप डाल लें अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं। कड़ी पत्ते, अभी हम कड़ी पत्ता भी डालेंगे इसमें। कड़ी पत्ते ये सब मिलाकर आप इसकी रोटी बना के, थोड़ा सा बेसन के आटे में आप जौ का आटा, मकई का आटा मिक्स करके आप उसकी रोटी बना के खाएं। तो उससे भी शुगर पेशेंट वालों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, फायदा जरूर होगा, यकीनन। अच्छा, अब हम लेंगे इसमें मेज़ान, इसमें मनपसंद बनास्पति। अच्छा, इसमें हमने मनपसंद बनास्पति लेंगे। इसको तकरीबन हमने लेना है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून लेकर इसको हल्का सा गर्म होने देंगे, ज्यादा नहीं। जरा सा गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने पूरा जो ये बैटर बनाया हुआ था ना, दही के साथ, आधा किलो दही और नारियल का आपने 3 टेबल स्पून इसमें बेसन, और साथ ही इसमें हमने ऐड कर दिया है कोकोनट क्रीम, जो नारियल की क्रीम होती है, पैकेट में आती है। ऑप्शनल है, डालें, लेकिन अच्छा फ्लेवर आएगा डालने के बाद, ये तो गारंटी है। जैसे इसको आप देख लीजिएगा। और नाज़िर, जैसे कोकोनट क्रीम अगर नहीं ले सकते तो जो मिल जाता है कोकोनट को, आप उसको ग्राइंड करके ना, बड़े से टुकड़े को ग्राइंड करें पानी में, और वो पानी भी इसमें डाल लें, क्योंकि खाउसे में भी बहुत बनाती हूँ। अच्छा, तो वो भी हम डाल सकते हैं। बहुत पसंद है। तो आप एक मतलब कि एक्सपेंसिव अगर आपको प्रोडक्ट लगता है तो थोड़ा सा कोकोनट ही लेके उसको चॉप करके ग्राइंड करके उसका जो पानी निकलता है वो भी डाल सकते हैं। वो भी डायरेक्ट कोकोनट भी डाल सकते हैं, वो भी, या वो फ्लेवर में थोड़ा सा फ्लेवर दूसरा चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो आपने कोकोनट लेना है, उसका पानी, ये भी अच्छा तरीका है, जो जरा सस्ता तरीका हो जाएगा और आसान सा घरेलू तरीका है। आपको ये जरा सा हिलाना होगा जी, थोड़ा थोड़ा आप इसे हिलाते रहेंगे। मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। अभी देखिए इसमें वो सारा जो है ना, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू फौरन आ गई। हाँ, और ये मनपसंद बनास्पति है ना, जिसमें ये डलेगा ना, ऑनेस्टली उसमें वैसी ही खुशबू जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी अच्छा है कि खाने में भी बड़ा मजे का लगेगा फिर। अच्छा, इसमें मैंने नमक डाल दिया है, पिंच इसमें दही, इसमें हल्दी का डालूंगी,
اور اس میں میں نے جو بھونا ہوا زیرہ تھا وہ بھی پنچ، تاکہ اس میں ہلکا سا فلیور جو ہے نا وہ اس کا آ جائے. اچھا دوسری طرف میں اس کو چڑھا دیتی ہوں مسالے کو، کیونکہ اس میں ذرا سا ٹائم لگے گا، اس میں بھی ذرا سا اس کو پکنے میں ٹائم لگے گا. بلکہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. جی ذرا سا چولہا ہلکا بھی کر دیتے نا. اوکے ہلکے چولہے میں اس کو ذرا، ہاں پھر یہ ہلکے چولہے میں پکتا رہے گا. یہ اس کا چولہا بھی ہلکا کر دیا. یہ بلکہ میں بعد میں پہلے اس کو میں کاٹ تو لوں یہاں پر. اچھا جی اب اس میں نے استعمال کرنا ہے پیاز، اور پیازوں کے ساتھ میں لوں گی ٹماٹر جو مسالہ بنانے کے لیے ہیں. اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، کال کیجیے گا. آپ کا کوئی سوال ہو آپ سوال کریں، سوال کے ساتھ ساتھ آپ کے ہم جو ہے کچھ باتیں بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اور آپ کو ہم ٹپس بھی بتاتے رہیں گے. اور جہاں جہاں آپ بہت ساری چیزیں بہت ساری فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا کھانا چاہیے اسپیشلی رمضان میں. اچھا بال گرنے کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہو جاتی ہے، جن کے بال بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں گر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی سا بھی تیل اگر ڈاکٹر بلکیز استعمال کریں، جو میں نے اس کا ذرا سا آزمایا ہے اس چیز کو، تو پھر میں اسی لیے آپ سے چیز پوچھوں گی کہ اگر استعمال کریں تیل پانی میں ڈال کر تو اس کا افیکٹ میں نے دیکھا ہے کہ بڑا اچھا آتا ہے. پانی میں ڈال کر اس کو پھینٹ کر اگر استعمال کریں تو بالکل. اور خاص کر یہ ڈرائی بالوں میں جب تھوڑا سا پانی ہو، آپ سرسوں کا تیل لے لیں، ہلکا سا اس کو وہ کر کے گیلے بالوں میں ہی آپ لگا لیں، گیلے بالوں میں ہاں تو بہت اچھا آتا ہے. خاص کر جن کے ڈرائی ڈیمیج اور بال جن کے پھٹ رہے ہوتے ہیں نا، دو منہ ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا رہتا ہے. اچھا کیونکہ یہ میں نے آزمایا، میں نے کہا میں لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے ڈرائنیس کی بیماری جو ہے سب سے زیادہ ہے، تو میں نے کہا ذرا ضرور. اب تو یہ ٹوٹکے چھوٹکے کرنے لگ گئے تو وہ بچت ہو رہی ہے نا. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی میرپور خاص سے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ہمارے ساتھ میں شیلا بات کر رہی ہوں. شیلا جی کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے شیلا جی. آپ بتائیے کہ رمضان کیسا چل رہا ہے؟ بہت اچھا گزر رہا ہے ماشاء اللہ سے. سب کے لیے دعائیں شوائیں کر رہی ہیں نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی دعا کروں گی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آمین. بات کرنی ہے؟ بالکل بات کیجیے گا. بولیے. ڈاکٹر بلقیس السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بلقیس صاحبہ یہ پرابلم ہے، مجھے نا نکوریا کی تکلیف ہے. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے، آپ کو ہم آن ایئر اس کا بتا دیں گے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. دیکھیے جو انہوں نے نسوانی بیماری بتائی ہے اس کے لیے آپ ایسا کیجئے، ازگن پاک لے لیں. ازگن لے لیں، اس کو ازگن پاک بھی کہتے ہیں، ازگن ناگوری بھی کہتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، وہ لے کر پاؤڈر بنا کر اس کو دیسی گھی میں بھون لیں. دیسی گھی میں بھون کر آپ رکھ لیں. پھر اس میں سے روزانہ رات سونے سے پہلے 1 چمچ لے کر اس کو آپ 1 کپ جو گرم دودھ ہے اس میں ڈالیں، مصری والا دودھ. اس کو تھوڑا سا ہلکا سا گرم کریں اور یہ پی لیں. اس کے ساتھ جتنی بھی تلی ہوئی تیز مرچ مسالہ اور تلی ہوئی چیزیں اس سے پرہیز کریں، انشاءاللہ آپ کو فرق پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی آمنہ، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آمنہ بات کر رہی ہوں کشمیر سے. جی آمنہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. رمضان مبارک. خیر مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ کا پروگرام دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. کیونکہ آپ لوگ خود پیارے ہوتے ہیں نا، اس لیے ہمیں بھی پیارا بول دیتے ہیں نا، ہے نا؟ اچھا تو ہاں لیکن پتہ ہے کیا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی نا، تو مجھے بہت کھانسی لگتی ہے. رمضان شروع ہوتا ہے اور مجھے کھانسی لگتی ہے، مطلب 3-4 ماہ تک مسلسل رہتی ہے. چلیے کوئی نہیں، اس کا بالکل ابھی علاج بھی بتا دیتے ہیں. اور کھانسی ہے نا خالی؟ ہاں صرف کھانسی ہے لیکن شدید قسم کی ہے. پلیز مجھے بتا دیں. چلیے ابھی بتا دیتے ہیں آن ایئر. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اچھا اس میں میں ڈالوں گی تقریباً 1 سے 1.5 چمچ من پسند بناسپتی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ابھی ہو گیا یا نہیں ہوا ابھی تک؟ نہیں ابھی تک اس کو ہونا ہے نا. جہاں جہاں اس کی ضرورت پڑے سے ہلا دیں. اور پانی چاہیے؟ پانی چاہیے اس میں، تھوڑا سا پانی ڈال دیں. ٹھیک ہے، تاکہ اچھی طریقے سے بیسن ہو جائے. ہاں یہ ہو جائے. جتنا چاہیے مجھے بتائیں. اور ڈالو بس. ٹھیک ہے. بیسن تو نہیں چاہیے نا؟ نہیں چاہیے. چلے ٹھیک ہے. یہاں پر من پسند بناسپتی میں نے ڈال دیا. اب اسی میں میں ڈالوں گی بھر بھر کر پیاز بھی. ذرا یہ پیاز اور ٹماٹر جو ہے پہلے ذرا سا پیاز لال کر لیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس میں ٹماٹر بھی ایڈ کر دیں گے. اچھا جی. اچھا جب ان کو میں بتا دوں کھانسی کا، جو ان کو آپ کھانسی کا بتا دیں، میں تو دیر تک ادرک اور لہسن جو ہے کدوکش کر لیتی ہوں. جی ٹھیک ہے. دیکھیے کھانسی کے لیے آپ نے کرنا ہے، ایک بوٹی آتی ہے کاکڑ سینگی. ایک بوٹی ہے کاکڑ سینگی. کاکڑ کنگ. ٹھیک ہے. کاکڑ سینگی
एक बूटिया थी, काकड़ सिंगी उसे कहते हैं। आपने उसको लेके समझ ले 10 ग्राम आपने लिया, उसको पाउडर बना के शहद में मिला के रखें। आपने 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, क्योंकि आपको शदीद खांसी है, आप इसमें से 1 टीस्पून 3 टाइम्स अ डे लेना है। तो अभी रमज़ान है, तो आपने क्या करना है कि सुबह सहरी में ले लिया, फिर अफ्तार में ले लिया, फिर रात सोते वक्त ले लिया, तो इंशाल्लाह आप देखेंगी हफ्ते के अंदर अंदर आपकी खांसी में फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक और टोटका है, वो करना ये है कि आपने जो केले का छिलका है उसको उतार के उसके अंदर व्हाइट सी एक चीज होती है, लेयर सी होती है, आपने उसको भी हटा देना है। फिर उसको तवे पर जो है ना आपने रख के उसको जला लेना है, जैसे उसकी नमी खत्म कर लेनी है। सही है, ठीक है। फिर उसको बिल्कुल वो नमी खत्म हो जाएगी तो उसको आराम से वो पिस जाएगा। फिर उसको आप शहद में मिलाकर, ये बच्चों की खांसी में भी और बड़ों की खांसी में, खासकर जो मतलब कि जिनकी एज ज्यादा होती है, उनको खांसी होती है, उनको दे, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। सही है, ठीक है, बड़ा अच्छी टोटका भी है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर और भी है, मीना है। मीना कहाँ से बात कर रही है? ओकाड़ा से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मीना। कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी? ठीक है। मैंने ना डॉक्टर बुल्कीस से बात करनी थी। बिल्कुल, बात कीजिए आप। सर, मुझे ना किडनी की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? किडनी की प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन्स है। अच्छा, किडनी में स्टोन्स है, ठीक है, सही है। अच्छा, ना उसकी वजह से ना बार बार इंफेक्शन हो जाता है। दवाइयाँ भी बहुत खाई हैं, डॉक्टर ऑपरेट कहते हैं, मैं ऑपरेट करवाना नहीं चाहती। नहीं, ऑपरेट क्यों नहीं करवाना चाहती? अगर आपके पत्थर बड़े हैं, कोई आपको दवा बताई जाए, वो मसाने में जाके अगर फंस जाए तो बेटा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कितना बड़ा है? लेफ्ट साइड पे 18 mm की है। कितना 18 mm। अच्छा, ठीक है, बड़ा, ठीक है, ओके, चले, ठीक है, 18 mm, ठीक है, सही है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि मनपसंद बनास्पति में मैंने भी ऐड किया है प्याज, अदरक, लहसुन और साथ में टमाटर। इसमें हम बनाएंगे कीमा जो खाउसे में डलेगा, और इनका आप वो भी बता दें, टोटका भी इनका बता दें कि क्या इनको इस्तेमाल करना चाहिए। इनको मैं स्ट्रेट एक दवा बता देती हूँ, होम्योपैथिक की दवा है, बर्बरीज वल्गरीज। क्यों पोटेंसी में लेना है, 15-15 कतरे 1 घुट पानी में डाल के पीना है। लेकिन अगर देखें आपकी पत्थरी बड़ी हो रही है तो आप टमाटर के बीज ना खाएं, उसके ऊपर का छिलका ना खाएं, पालक ना खाएं, ठीक है, और पानी का इस्तेमाल करें। और एक चीज़ होती है, जो भुट्टे होते हैं उसके ऊपर एक बाल से होते, उसको पानी में उबाल कर वो वाला पानी इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उससे आपकी पत्थरी निकल जाएगी। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, आपका साइज बड़ा है, आप ये दवा 15-20 दिन इस्तेमाल करें। अगर अफाका नहीं होता तो आपको जो डॉक्टर कह रहे हैं आप वो कीजिएगा। चलिए, सही, ठीक है। तो बताएं भी और टाइम है इसके लिए? हो रहा है, इसकी देखिए प्यारी से खुशबू आ रही, ऊपर से सारी लेयर आ गई, अच्छी, बहुत प्यारा सा हो गया है। जितना पकता रहेगा ये तो इतना अच्छा होता है, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मुझे इस कढ़ाई की ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने कहा अगर ये जल्दी पक जाएगा ना तो तकरीबन तो हो गया सारी, देखो पूरी उसके ऊपर आ गई है, आ गया, बस सही है, ठीक है। जब तक मैं इसको मसाले को बनाते हैं, मैं मसाले में जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो भी आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने ऐड करना है गरम मसाला, तकरीबन मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। इसमें मैंने ऐड करना है हल्दी, जो कि अगेन पिंच मैंने हल्दी की ले ली, और इसमें मैंने नमक डाल दिया। अच्छा, और साथ ही लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर दी। ये इस मसाले में डालने का मकसद ये होता है कि पहले हम ये इस मसाले को बना लेंगे, और बाद में जब कीमे को बनाएंगे तो ये मसाला उसी में ही हम ऐड कर लेंगे, या इसी मसाले में हम कीमे को ऐड कर लेंगे, जो भी बेहतर हो। और फिर हम दोबारा से मसाले ऐड करेंगे। इससे ये होता है कि इस मसाले में भी ऑटोमेटिकली वो लज्जत और टेस्ट आ जाए, और कीमे में भी फिर आ जाए। अच्छा, तो इसको मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालकर इसको पकने दे देते हैं, ये पकता रहेगा। अच्छा, देखिए बाज हमारे यहाँ नाज़ी एक गलत ट्रेंड है, अगर डॉक्टर कहता है कि आपको ऑपरेशन कराना है, बिल्कुल बिल्कुल सही, आपकी बात मैं काट रही हूँ क्योंकि अभी ब्रेक का टाइम आ गया है। हम ब्रेक के बाद दोबारा इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ ही रहें। This time check was brought to you by Lasanica Archimazole. Lasanica Dimexo,
गैस, बदहजमी और निजाम हजम की इस्लाह के लिए उम्दा अर्कियात से तैयार शुदा खुश जायका सिरप ऑरेंज टेस्ट के साथ लासानी का डाई मैक्सो। गवर्नर सिंध बाबर आवान में मुलाकात। सिंध में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट NICL केस का फैसला पीर को सुनाएगा। और मुसल्लिन मलबे से मजीद 3 लाशें बरामद, हलाकतें 21 हो गईं। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। PTCL रमजान ऑफर ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल अब हुआ अनलिमिटेड सिर्फ 299 रुपए में। तालीम, बैनुल अक़वामी खबरें या कोई रिसर्च, अब किफायत और डाउनलोड्स दोनों ही अनलिमिटेड। ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल पैकेज हासिल करें और अनलिमिटेड डाउनलोड का मजा लें। तो ऑर्डर कॉल 0800 80800। इस रमजान रहे घर घर मीजान, क्योंकि अब मीजान कुकिंग ऑयल और बनास्पति पर आपको मिले 80 रुपए तक की बेमिसाल बचत, ताकि रहमतों और बरकतों के इस महीने में मिले सेहत, लज्जत और बचत साथ साथ। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। जो सेहत और लज्जत से भरा खाना खाते हैं वो जिंदगी का मजा लेते हैं। शमा बनस्पति 4 नस्लों से आपके साथ, सेहत दिल में, जायका जुबान पर। PTCL रमजान ऑफर ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल अब हुआ अनलिमिटेड सिर्फ 299 रुपए में। तालीम, बैनुल अक़वामी खबरें या कोई रिसर्च, अब किफायत और डाउनलोड्स दोनों ही अनलिमिटेड। ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल पैकेज हासिल करें और अनलिमिटेड डाउनलोड का मजा लें। तो ऑर्डर कॉल 0800 80800। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं मनपसंद बनास्पति का हमारा ये किचन है, जहां पर हम बना रहे हैं मनपसंद बनास्पति से बहुत मजेदार डिश, और बन रहे हैं आज खाउसे। और खाउसे के लिए आपको पहले बताया था, मैंने बॉईल कर लिया है यहाँ पर नूडल्स को, और अब इसका मसाला बन रहा है। कड़ी बन चुकी है, कड़ी मैंने बनाकर साइड पर कर दी है। अब जो इसका मसाला है वो बनेगा। फिर मैं इसे लूंगी एक दफा फिर मनपसंद बनास्पति फॉर चिकन कीमे के लिए। ठीक है, ये चिकन कीमे के लिए है। अच्छा, इस बनास्पति से बिल्कुल जो खुशबू जो है इतनी अच्छी और बिल्कुल ऐसे आ रही जैसे देसी घी की। तो है ही देसी घी ना, इसी वजह से तो वही वाली खुशबू बहुत अच्छी वाली। तो और लेकिन बिल्कुल मुकम्मल जिसे कहते हैं ना, ये वो वाला बनास्पति है। अच्छा देखिए, एक बात ये भी है कि अगर बनास्पति आप लेते हैं और वो देसी घी हो तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, आपने बताया था एक दफा कि ये बनास्पति जो होता है ये बालों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, लगाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप ये लगा लें, या ड्राई डैमेज बाल अगर आपके हैं तो आप सिर्फ इसको लेकर आप इसमें एक थोड़ी सी क्रीम मिक्स करें और एक केला आप मिक्स करें, और वो भी, और आप जो है ना फिर इसको बालों में लगाएं। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए जो गांव वगैरह के जो लोग हैं वो लोग बनास्पति देसी घी का इस्तेमाल बालों में बहुत पहले से करते थे, और उनके बाल सफेद भी नहीं होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी उनके जो है अच्छे बाल रहते हैं। अच्छा जी,
और यही अगर आपके हाथ सर्दियों में बहुत फटते हो तो आप किचन में थोड़ा सा लेके जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा वैसे जरा सा लेके क्रीम की तरह अपने हाथों पे लगाएं। आप देखिए इसमें इतना बड़ा बड़ा सा लिखा है विटामिन ए, डी, ई, तो ये सारी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप ये लगा सकते हैं हाथ पे जब आप किचन से काम करके जा रहे हैं, लेकिन ये आप कीजिएगा किसी अच्छी, जिस तरह की मनपसंद है और कोई अच्छी कंपनी का जो आप है उससे उसके साथ उससे आप आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और देखिए चिकन जो है ये भी मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी और पकाने के साथ इसमें मैंने सिर्फ लहसुन डाला अभी तक। अब इसमें बाकी के भी जो है मैंने कहा था ना कि अदरक हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी डलेगी तकरीबन 1 पूरा कप इसमें। ये हमें बनाना है थोड़ा मसालेदार सा, तो ये अच्छा मसालेदार सा इसी तरह ही बनेगा। और इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला भी, और गरम मसाला तकरीबन इसमें जो आधा मैंने इस टीस्पून बचाया हुआ था वो हम डाल देंगे। इसमें मैं डालूँगी, साथ इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पिंच हल्दी भी। अच्छा देखिए, हल्दी हर सूरत में अपने खाने में रखना चाहिए क्योंकि ये एंटी कैंसरस है, ये आपको कैंसर से भी बचाता है। और अंदर जो फाइब्रॉइड या सिस्ट जो प्रॉब्लम होती है, आजकल हर 5 खवातीन में से 1 को फाइब्रॉइड या सिस्ट का मसला जरूर है। उसके लिए हल्दी दूध में डाल के आप लोग पिए, इंशाल्लाह इससे काफी फर्क पड़ेगा। ओके, बड़ी अच्छी आपने टिप बताई है। और साथ ही हम इसमें जो है जो हमने मसाला बनाया था ना, ये मसाला भी मैं अब इसी में ही ऐड कर दूँगी। ये देखें, इसमें प्याज और टमाटर का मसाला था, ये भी इसी में ही ऐड होगा क्योंकि हमें ज़रा मसालेदार कीमा चाहिए। नॉर्मल जो कीमा होता है उससे ज़रा हटकर। अब इसको हम जो है पकाते रहेंगे। अब ये कीमा पकता रहेगा। कीमा चिकन का वैसे भी जल्दी पक जाता है, बहुत जल्दी, 5 से 10 मिनट में आराम से तैयार हो जाता है। थोड़ी सी आँच ऐसा कर देते हैं। और देखिए आँच का बड़ा काम होता है, कभी आपने आहिस्ता आँच कर दी, कभी एकदम से तेज़ कर देते हैं, तो इस चीज़ का भी ना ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ नमक भी, तो हस्बे जायका हम नमक इसमें ऐड करेंगे। काली मिर्ची भी ऐड कर दी। अब बारी है ज़ीरा की। हमने इसमें ज़ीरा भी 1 टीस्पून डाल दिया, जो मैंने भून लिया था शुरू में ही ना, इसलिए भूना था ताकि ये जो है ना इसका अपना एक मज़ा और लज्जत भी आ जाए। ये ऐड करने के बाद इसमें मैं कड़ी पत्ता डालूंगी। कड़ी पत्ते की भी आपने खासियत बताई है, बड़ी अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। बाल अगर फ्रीजी हैं तो आप तेल में पका के ले तेल में पका कर भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। या ब्लड प्रेशर वालों के लिए जिस तरह आपने 3 से 4 इस तरह ये कड़ी पत्ते, ये आप खा लिया करें दिन में 2 दफा। अच्छा देखिए, मैंने कड़ी पत्ता जो है और ये शुगर वालों के लिए एग्जैक्टली मैंने इसमें बिल्कुल भी इसमें वो साबुत नहीं डाला, थोड़ा सा तोड़ के डाला ताकि इसकी खुशबू जो है आती वो जल्दी आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये बालों के लिए भी अच्छा है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी, शुगर पेशेंट वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर देखें ना, कड़ी पत्ते की खुशबू आ रही है, थोड़ी सी और मुझे खुशबू चाहिए क्योंकि है खाउसे में जब तक कड़ी पत्ते की खुशबू ना आए तो वो मज़ा नहीं आता। वो फ्लेवर और वो जो जान है कीमे की वो ऐसे नहीं होती जब तक आप इसमें ये डालेंगे। अच्छा, साथ ही मैं क्रश करके 2-3 लाल मिर्चें भी इसमें जो है वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, जो साबुत खड़े मसाले का जो मज़ा आता है वो वैसे नहीं आता जो आप बाज़ार से जो मसाले लेते हैं ना। बिल्कुल। और बल्कि घर में ये चीज़ गरम मसाले के लिए भी है। आप एक साथ पीस के रखते हैं ना, तो उनमें होता है एक वॉलेटाइल ऑयल होता है, वो उड़ जाता है अगर आप पीस के रखते हैं। तो आप उसी वक्त अगर उसको क्रश करके आप बनाएंगे तो आप देखेंगे वो आपके उस खाने की लज्जत, उसकी अरोमा, उसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये जो है थोड़ा सा ज़रा सा मसालेदार सा, ज़रा सा ये जो है ना सालन वाला लगे। अच्छा, एक तरकीब जो है वो और भी होती है कि आप खाने से पहले जो है पानी पिए। इवन लोग इफ्तार में क्या करते हैं, पहले खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो खाने से पहले जो है सबसे पहले मेरे ख्याल में पानी पीना चाहिए। क्या कहते हैं आप? अब बहुत अगर ठंडा पानी पी लिया ना, उसके बाद आप सिर्फ पानी ही पीते रहेंगे क्योंकि ठंडा पानी आपकी प्यास को बढ़ाता रहेगा। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी ना पिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीजिए। हमारे साथ सबा भी है, सबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबा। हेलो जी सबा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सबा।
हेलो जी सबा। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। हमने अभी डाल दिया है मनपसंद बनास्पति, ठीक है, और मनपसंद, इसको हम थोड़ा सा आंच को आहिस्ता कर देते ताकि ये अपना पकता रहे। इसको थोड़ा ढाँप ना दें, ढाँप के अपना जो है ये अपने ये जूसेस इसमें जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा ढाँप देते हैं इसको। और यहाँ पर मैं जो तड़का बना रही हूँ ना, ये बेसिकली तड़का है कड़ी का। कड़ी हमने यहाँ रख दी है। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी राई, चुटकी भर राई डाल दी। साथ में इसमें मैं डाल दूंगी जीरा, अगेन चुटकी भर जीरा डाल दिया। लाल मिर्च हमने इसमें 2-3 डाल दी हैं ऐसे ही। और ये कड़ी पत्ता भी इसमें हम डाल देंगे। और ये खड़क 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 अभी ये बस थोड़ा सा इसी तड़के को हमने ऐड कर दिया। ये देखें, आहा, इसकी खुशबू और मज़ा जो है 100% और ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर प्लीज़ आप इस तरफ आ जाए तो फिर मैं इसको जो है ना खांसे में ये ऊपर डाल दूँ, इसको ऐड कर दो। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी, हमसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस अजीज, कैसी हैं आप? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, ये कड़ी जो है आप देख रहे हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। जो मैंने यहाँ पर नूडल्स बॉईल करके रखे हुए थे ना, क्योंकि कड़ी तैयार हो चुकी थी, ये इसके ऊपर ऐसे आ गई। ये यहाँ पर डाले। और ये जो चिकन है इसको भी देख लेते हैं कहाँ तक पहुँच गया है। डॉक्टर बिल्कुल ज़रा देखें, ये देखें, जो हम चाह रहे थे ना कि जूसी सा हो, ये जूसी सा चिकन बन चुका है। और चिकन हमेशा जल्दी बन जाता है, इसलिए हमें इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। सारा ऑयल भी ऊपर आ गया। हाँ, अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि इसको डाल देंगे। देखिए, खाओ से डालने का भी जो है ना तरीका वो यही होता है कि आप इसी तरह ऐसे इसके ऊपर आप ऐड करते हैं। और हमारे साथ सबा है कराची से, दोबारा से उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया। सबा कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र नादिया बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? सबा मेरी दोस्त ना? जी जी, है ना। और बताओ, रमजान आपके कैसे चल रहे हैं? जी नादिया, मुझे ये कहना है, हाँ मेरी थोड़ी ना तबीयत सही नहीं है। किसकी? आप डॉक्टर बिल्कीस आई है ना? हाँ, तो इनसे बताइएगा इन्हें कि मेरा तो इलाज हो गया था, लेकिन अभी मैंने ना अपना टेस्ट करवाया तो मेरे लीवर में बताया है डॉक्टर ने ना। ओह अच्छा, ठीक है। तो पॉइंट आया है। कब पूरा हुआ? अब मेरा सिटी स्कैन हो गया, मेरी मंडे को रिपोर्ट आएगी। ठीक है। तो लीवर में दोबारा से आया है क्या? जी, मैं लीवर में दोबारा आया है मेरे ना। पहले तो लिवर में नहीं था ना? नहीं, पहले ब्रेस्ट में था ना, तो वो तो पूरा कंप्लीट हो गया मेरा इलाज। ठीक है। तो कितना अर्सा हुआ था? कीमो हुआ था, रेडियोलॉजी हो गई थी, कीमो भी हुई थी। मुझे ना आवाज सही नहीं आ रही, पता नहीं आपकी लाइन में क्या पता है। सबा एक काम करते हैं ना, सबा ये आपका मसला जो है ना, इसको डॉक्टर बिल्कीस से डायरेक्ट मेरे ख्याल में आपकी मुलाकात होनी चाहिए। क्यों नहीं आप इनसे एक दफा मिल लेते हो? नादिया, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अच्छा सबा, आपको मैं खुद फोन करूंगी, मुझे आप अपना नंबर एक बार फिर मैसेज कर दीजिएगा। पता नहीं मेरे पास आया नहीं आया, जस्ट इन केस। तो आप मुझे अभी दोबारा से अपना नंबर मैसेज कर देना। और आप ना अभी आके ना डॉक्टर बिल्कीस से ना डायरेक्ट भी मिल लेना, मतलब कल मिल लेना, परसों मिल लेना, ठीक है। और कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, इंशाल्लाह ताला सब सही हो जाएगा। जहाँ पर इतने आपने मुश्किल मराहल से आपने गुजरे हो, एक मरहला अगर आ रहा है तो कोई वैसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपके साथ हम सब हैं, हम सबकी दुआएं। और आप हिम्मत के साथ इस वक्त जो है ना, आप हमारी वो बहन हो जो इस वक्त वाकई बहुत हिम्मत के साथ चल रहे हो। बेशक। असल में नादिया, जिनको भी कैंसर होता है, कैंसर की तमाम ट्रीटमेंट होने के बाद भी, फिर उसके बाद भी प्रिवेंशन रखना चाहिए। आपने प्रोसेस फूड्स नहीं खाना, केन फूड्स नहीं खाना, ये आप लोग, और जो मसाले वाली चीज़ें नहीं खाएं। घर में ताज़ा बना हुआ, इवन फ्रिज के बने हुए चीज़ें भी आप नहीं खाओ, क्योंकि आपका मैदा, आपकी तमाम चीज़ें एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह हो जाती हैं। आपको बहुत केयर की ज़रूरत होती है। उसके साथ एक टोटका है जो हर कैंसर पेशेंट ड्यूरिंग अपने इलाज और उसके बाद भी कुछ महीनों तक करता रहे तो बहुत अच्छा है। दो चीज़ें, सुमलो और दमासा। सुमलो और दमासा, अगर सुमलो के जड़ के ऊपर का छिलका पाउडर मिल जाता है तो बहुत बेहतर है। बेहतरीन चीज़ है। अगर नहीं मिलता तो आपने सुमलो और दमासा दोनों को पाउडर बना के रखे,
1 चम्मच 1 कप खूब खौलते गर्म पानी में डाल के रात को भिगो दें, सुबह निहार मुंह पी लें। अभी सब मसला अपना बता रही थी लीवर का। हाँ। उसके लिए ऋषि मशरूम्स भी बहुत अच्छे होते हैं। किसी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से आपको इसके हो सकता है कैप्सूल्स मिल जाएं, आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे जरूर इस्तेमाल करें। चाहिए आपसे जरूर कांटेक्ट भी कर लेंगे। और इसके साथ ही आपने देखा आज मनपसंद बनास्पति में हमने बनाया है बहुत ही मजेदार खौसे, घर पे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को और साथ में ही डॉक्टर बिल्किस को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान। مولاي صل وسلم